ये है आपका forms, powers, personalities and appearances of the mother। माँ की शक्तियां, उनके रूप, पर्सनैलिटीज, उनकी विभूतियां, अंश विभूतियां, उनके व्यक्तित्व और अपीयरेंसेस, अलग अलग जो रूप हैं जिनके अंदर माँ प्रकट होती हैं। निर्गुण एंड सगुण, फॉर्मलेस एंड विथ फॉर्म। मतलब निर्गुण सगुण, निराकार फॉर्मलेस निराकार, विथ फॉर्म साकार। My being rose higher and higher. I saw God's power of creation, and from there, worlds, beings, and gods were spreading out. Even God, through his power of creation, was getting expressed as different forms, Sagun, Nirgun, etc. God and his creative power are one. This creative power is his Shakti, the mother. Is this correct? My being rose higher and higher. I saw God's power of creation, and from there, worlds, beings, and gods were spreading out. Even God, through his power of creation, was getting expressed as different forms. God and his creative power are one. This creative power is his Shakti, the mother. Is this correct? It is right. There is no difficulty about it. Nirgun, Sagun are only aspects taken by the divine in the manifestation. It is the mother who manifests. Creation is only manifestation, the Sagun और द निर्गुण ईश्वर। माँ ही जो हैं वो सगुण या निर्गुण ईश्वर को मैनिफेस्ट करती हैं। This morning I perceived the mother both as with form and as the formless. Both experiences are correct. What is opposite and incompatible to the mind, which thinks by limitations, is not so to the higher consciousness. Neither form nor formlessness is the sole truth by itself, excluding the other. The divine manifests through both, but is bound by neither. My wife wishes to have explicit instructions from the mother as to which of the following two procedures would be most conducive to her spiritual evolution. उसके आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अधिक जो कंड्यूसिव दो प्रोसीजर्स। My wife wishes to have explicit instructions from the mother as to which of the following two procedures would be most conducive to her spiritual evolution. Should she meditate on the lotus of the heart, heart का जो चक्र है उसके ऊपर, and think of mother as the light of lights situated therein, which is the real bliss, omnipresent and omniscient, which supports everything in the universe and which sustains all by giving support and life to every variety of existence। क्या वो हृदय के अंदर मेडिटेट करे, हृदय का जो पद्म है उसके ऊपर लोटस, एंड थिंक ऑफ द मदर एज द लाइट ऑफ लाइट्स सिचुएटेड देयर इन, और माँ जो है वो वहां विराजमान है, विच इज द रियल ब्लिस, omnipresent and omniscient, which supports everything in the universe and which sustains all by giving support and life to every variety of existence। तो or should she think of mother in her present form, which she sees during pranam, as separate from her physically and apart from her in her suite at the ashram?
She has been brought up and molded spiritually in the first way. She always recognizes the divine as formless, immanent, and omnipresent. But now, if you advise it, she is willing to worship the mother in her heart in a personal way. To meditate on the mother, ये श्री अरविंदो का उत्तर है, as the formless divine is a good meditation and can be continued, but for the full effect in this योग, it is not enough. ये पर्याप्त नहीं है. To meditate on the personality of the mother in the heart is also necessary. But whether she should do that now or not depends on the feeling in herself, whether she needs it or feels ready for it. तो पर्सनल एस्पेक्ट और ये कई तरीके की बातें हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं. Many powers and forms. I see the mother in various forms, but I am unable to understand their meaning. बहुत अनेक रूपों के अंदर मैं माँ को देखता हूँ, पर जिन तरीकों से या जिन रूपों में मैं देखता हूँ, उसका अर्थ मेरे नहीं समझ में आता. Is it true that she shows herself to us in different forms and aspects? Of course, बिल्कुल. The mother has many forms on the supraphysical planes. माँ के अनेक अनंत रूप हैं. Sometimes when I see the mother, I feel as if she is the image of divine Anand. कई बार जब मैं देखता हूँ माँ को, तो मेरे को महसूस होता है कि वो मूर्ति हैं, इमेज किस चीज की? दिव्य आनंद की. And her form looks like that of a young girl. और उनका रूप एक यंग गर्ल के जैसा दिखता है. Is there any truth in my feeling? Anand is not the only thing. There is knowledge and power and love and many other powers of the divine. As a special experience only, it may stand. तेरा जो अनुभव है, एक स्पेशल अनुभव के रूप में ठीक है, ये रह सकता है, ये वैलिड है, पर ये कंप्लीट नहीं है. क्योंकि माँ की कंप्लीटनेस के अंदर तो नॉलेज, पावर, लव, ये सारे के सारे एस्पेक्ट है. I can see the mother in different forms on every level in my Aadhaar. I cannot understand what is the purpose of her taking different forms. It is always so. The mother manifests in many forms according to the need of what has to be done. Adya Shakti. Adya Shakti is the original Shakti, therefore the highest form of the mother. आद्या शक्ति का अर्थ ही है ओरिजिनल. आद्या मतलब आदि, ओरिजिनल शक्ति, देयरफॉर द हाईएस्ट फॉर्म. और इसलिए जब ओरिजिनली, अरे भाई शुरुआत ही वहीं से है, तो इसलिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द मदर है आद्या शक्ति. ओनली शी मैनिफेस्ट्स इन अ डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू द प्लेन फ्रॉम विच वन सीज हर. जिस रूप में व्यक्ति उनको देखता है, उस स्तर के अनुसार वो भिन्न भिन्न तरीकों से अपने आप को मैनिफेस्ट करती है. आप कहते हो आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे. फिर बाद में वो देवी हैं जो अलग अलग स्तरों के ऊपर हैं, जो अतिमानस के स्तर के ऊपर हैं, मानसिक स्तर के ऊपर हैं, हर स्तर के ऊपर ये विराजमान हैं. जैसे आप कहते हो या देवी सर्वभूतेषु, इन रूपों से संस्थिता, तो चेतना के रूप में विराजमान है, अलग अलग रूपों के अंदर विराजमान है. ये बात कर रहे हैं. महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती. Yesterday night I saw Maheshwari above my head. मेरे सिर के ऊपर मैंने देखी. महाकाली in my vital being and महालक्ष्मी seated in my mind and heart. महेश्वरी है, वो सिर के ऊपर है. महाकाली मेरे वाइटल बीइंग में है. महालक्ष्मी मेरे मन में है और हार्ट में है. Each one radiated a different light from
her body. Then I saw a few subtle powers descending into my being. फिर मैंने कुछ सूक्ष्म शक्तियां देखी जो मेरे बीइंग के अंदर नीचे उतर रही थी. महेश्वरी इज नेचुरल प्लेस. महेश्वरी का जो उनका सहज स्थान है इज इन द हायर कॉन्शियसनेस अबव द माइंड. फोर, क्योंकि शी इज द वाइडनेस एंड लार्जनेस एंड विजडम ऑफ द डिवाइन. महेश्वरी के चरित्र का या उनके रूप का वर्णन हमने इस रूप से कि लार्ज लाइंस के अंदर महेश्वरी देख लेती हैं. महाकाली का स्विफ्ट एक्शन है, एक्ट्स मोस्ट नेचुरली थ्रू द हायर वाइटल which is the instrument of force and power. Mahalakshmi acts through the heart. In your case, at present, she is acting through the mind also. क्योंकि उसने कहा महालक्ष्मी को मैंने माइंड और हार्ट के अंदर सीटेड देखा. तो महालक्ष्मी जो है वो हार्ट के थ्रू काम करती हैं. तेरे साथ अभी तेरी जहां तक बात है वो माइंड में भी कार्य कर रही हैं. तो दैट इज लेस यूजुअल, हालांकि ऐसा कम होता है. ऑर्डिनरली इट इज महासरस्वती. सामान्यतः ये स्थान क्रिया का जो है वो महासरस्वती का है. महेश्वरी इज महेश्वरी ऑन द इंट्यूटिव and the overmind levels. These powers can manifest on all levels from the overmind to the physical. महेश्वरी जो है वो इंट्यूटिव और ओवरमाइंड लेवल्स की देवी है क्या? तो ये कह रहे हैं these powers can manifest on all levels from the overmind to the physical. माँ की ये दो शक्तियां हैं ये हर स्तर के ऊपर कार्य कर सकती हैं. जैसे सुप्रामेंटल के अंदर है, सुप्रामेंटल की देवी हैं. मैंने जैसे अभी बताया था, आप बोलते हो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण या चेतना रूपेण या जिस भी रूपेण, शक्ति रूपेण. तो ये हर स्तर के ऊपर रह सकती हैं और हर स्तर के ऊपर क्रिया कर सकती हैं. आई हैड ए टॉक विथ एक्स इन विच ही सेड दैट एथेना इज ए फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन ऑफ महेश्वरी. ग्रीक देवी हैं ये. Some of my visions of gods like Shiva were in forms resembling human forms. श्री अरबिंदो को इन देवियों के दर्शन हुए थे वेद के समय में. तो ये कई जो देवियों का समूह उनके सामने, 4 देवियां प्रमुख रूप से आई. तो उन्होंने कहा भी ये एक आध तो फेमिलियर हैं, बाकी कौन सी हैं? ये वाली जो इंट्यूशन है वो तो शर्मा, फिर आपके इंस्पिरेशन सरस्वती, बाकी आपके जैसे इड़ा है, माही है. ये कौन सी देवियां हैं? क्योंकि इनका वर्णन उस रूप में उपनिषदों में नहीं है, वैदिक उसमें है. और उस समय तक ये प्रचलन में था कि वेद कर्मकांड से संबंधी है, वेद में और कोई वो वाली बात नहीं है. तो श्री अरविंद ने उसको देखा नहीं था तब तक. तो श्री अरविंद को उसका उसकी की पहले आई, मतलब अनुभव पहले आए, और उस आधार पे उन्होंने उसको उसकी की को ट्रेस करना शुरू किया. ये सारी बात वेद रहस्य में है. ये सारी बात श्री अरबिंदो ने अपने सीक्रेट ऑफ वेद में, और ये इतनी प्रोफाउंड चीज है ये, इसकी तैयारी यदि हम नहीं करें तो ये सबसे बड़ी निधि है हमारी, वो चूक जाएंगे. क्योंकि इंडिया की बेडरॉक है, और श्री अरबिंदो के जो एक्सपीरियंसेस हुए और फिर बाद में उन्होंने प्रवेश किया, एक बहुत बड़ा फील्ड है, वो हम चूक जाएंगे. पहले तो उसके लिए तैयारी करना, नहीं तो हम उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? फिर किस आधार पे प्रवेश करोगे उसमें? तो ये समय रहते हम अपनी तैयारी करें तो जो श्री अरबिंदो की ये चीजें हैं उनमें प्रवेश कर पाए. इस जीवन में आए तो श्री अरबिंदो को तो कम से कम पढ़ें तो सही. Some of my visions of gods like Shiva were in forms resembling human forms, but I thought this was due to my having seen them on the planes relating to the human mind
and so my mind saw them in that way. Before the material creation took place, the vital and mental worlds existed, and before that, the planes of the higher hemisphere existed. But did the gods on these planes exist with forms and shapes, or did they only exist as impersonal forces without forms? अच्छा प्रश्न है, फिर से आप समझो इसको। पहले तो ये कह रहे हैं, I had a talk with X in which he said that Athena is a form or representation of Maheshwari. मैंने किसी से बात करी, आश्रम में कोई साधक होगा, तो महेश्वरी हैं वो। आई सेड दैट एथेना जो है ना, वो महेश्वरी का रूप या उसका ही रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज, सम ऑफ माई विजन्स ऑफ गॉड्स लाइक शिव वर इन फॉर्म्स रिजेंबलिंग ह्यूमन फॉर्म्स। मेरे जो विजन हुए, अलग अलग देवताओं के विजन इसको हुए होंगे, जो भी व्यक्ति ये लिख रहा है, भगवान शिव का, राधा का, या जिन जिनका इसको अनुभव हुआ होगा, वो मेरे को ऐसे रूपों के अंदर दिखे जो रूप मानव रूपों जैसे दिखते थे। बट आई थॉट दिस वॉज ड्यू टू माई हैविंग सीन देम, पर मैंने सोचा वो इसलिए ऐसे दिख रहे हैं ऑन द प्लेन्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन माइंड, क्योंकि मैंने उनको मानव मन से संबंध रखने वाले जगतों में देखा है, मतलब मन में देखा है, आपकी कल्पना शक्ति या इन जगतों में आपने देखा है। एंड सो माई माइंड सॉ देम इन दैट वे। इसलिए मेरे मन ने, क्योंकि प्रकाश आप देख रहे हो पर कोई उसके ऊपर लैंप शेड है, सपोज पानी आप देख रहे हो किसी गिलास के अंदर है तो वो शेप ले लिया। तो ये कह रहा है कि मैंने शिव के और के रूप देखे, वो वैसे ही दिखते थे जैसे मानव रूप दिखते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये इसलिए मानवीय रूप में नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं उनको मानवीय उसमें स्ट्रक्चर के अंदर, मेरा मानवीय स्ट्रक्चर है, इसलिए वो मानवीय नजर आ रहे हैं। बिफोर द मटेरियल क्रिएशन टुक प्लेस, इससे पहले कि ये भौतिक, जड़ भौतिक क्रिएशन हुआ, द वाइटल एंड मेंटल वर्ल्ड्स एग्जिस्टेड, उससे पहले मानसिक और प्राणिक जगत तो थे। बिफोर दैट द प्लेन्स ऑफ द हायर हेमिस्फीयर एग्जिस्टेड, और मानसिक और प्राणिक जगतों से पहले और उससे ऊपर के जो है हेमिस्फीयर के जगत हैं वो एग्जिस्ट करते थे। आपके मन प्राण शरीर, उससे ऊपर, फिर बाद में बीच का अगर करो तो आपके ओवर माइंड, सुप्रामेंटल, और फिर बाद में ये लोअर हेमिस्फीयर हो गया, वो हायर हेमिस्फीयर हो गया। But did the gods on these planes exist with forms and shapes? इन जगतों के अंदर जो लोअर नहीं हायर हेमिस्फीयर के अंदर हैं, क्या उसके अंदर भी ये देवताओं के रूप हैं और वैसी ही शेप हैं? गणेश जी इसी शेप में हैं। यहाँ तो आप एक शेप में देखते हो भी, सूंड लगे हुए, इनका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आप ये कहते हो ये बुद्धि के देवता हैं, ये इस चीज के देवता हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं। और डिड दे ओनली एग्जिस्ट एज इम्पर्सनल फोर्सेस विदाउट फॉर्म्स? तो क्या इन जगतों के अंदर इम्पर्सनल फोर्सेस के रूप में, मतलब जो अभी व्यक्तिभूत नहीं हुए हैं, विदाउट फॉर्म्स, क्या इस तरीके से, एज टू द गॉड्स मैन कैन बिल्ड फॉर्म्स, ये अपन ने ये कोटेशन जगह जगह काम में भी लिया है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है अपनी इंडियन कल्चर वाली में भी लिया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें अपने रामचरितमानस में भी कहीं ना कहीं लिया जरूर होगा इसको। एज टू द गॉड्स मैन कैन बिल्ड फॉर्म्स विच दे विल एक्सेप्ट। ये सबसे मूलभूत रेवलेशंस हैं, ये वाला जो पत्र है ये। बट दीज फॉर्म्स, और ये देवताओं के विषय में मनुष्य उनसे कैसे इंटरेक्ट करता है उस बारे में है छोटे सा ही, पर ये इतना रिवीलिंग है, इसको आप इनफ समझ ही नहीं सकते इस पूरे पत्र को। ये हमने कई जगह कोट किया है। बट दीज फॉर्म्स टू आर इंस्पायर्ड इनटू मैन्स माइंड फ्रॉम द प्लेन्स टू विच द गॉड बिलोंग्स। All creation has the two sides, the formed and the formless. The gods too are formless and yet have forms, but a godhead can take many forms. Here Maheshwari, there Palace Athene. Maheshwari herself has many forms in her lesser manifestations, Durga, Uma, Parvati, Chandi, etc.
The gods are not limited to human forms. Man also has not always seen them in human forms only. धरती के ऊपर यहाँ ये एक मूलभूत बात है, ये एक फंडामेंटल प्रश्न है। कई जगह अलग अलग तरीकों से श्री अरबिंदो ने इससे डील किया है। पहला तो ये प्रश्न आता है कि वैदिक समय के अंदर जो देवता जिस रूप में नजर आते थे, उनका स्वरूप उपनिषद काल आते आते चेंज हो गया। उनका फंक्शन जो आप वैदिक काल के अंदर पाते हो, वो फंक्शन उपनिषदिक काल के अंदर आते आते चेंज हो गया। उसके बाद आप अगर पुराणों की ओर की बात करो, उनमें आते आते उनका स्वरूप और चेंज हो गया। आज आप ये देखो तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवता जागृत देवता के रूप में हैं। आप साउथ के अंदर जाते हो, गणेश जी एक बहुत ही जागृत देवता के रूप में है। नॉर्थ के अंदर आपके बालाजी, हनुमान जी, और भी देवता हैं, पर ये जागृत देवता के रूप में। अब ये तो कोई वैदिक गॉड्स की तो कोई बात नहीं है सच। इन दोनों की यदि बात करो, आप हनुमान जी की बात करो, कितना जबरदस्त प्रभाव आप ये देखो। तो जिन जिन रूपों के अंदर ये अब पुराण में आते आते, तंत्र के समय आते आते, ये सारा फंक्शन, ये एक बहुत डीप चर्चा है। पर इसके लिए पहले एक स्टडी की और की ये जरूरत है। ये अपने जो पुराण वाला जो इशू है, रामचरितमानस का एक पुराण का भी है उसमें। उसमें पुराण क्या कर रहे हैं, पुराण की बात क्या है, वो आप रेफर कर सकते हो। बाकी तो इसको तो अपन यहाँ देखते हैं, एज टू द गॉड्स मैन कैन बिल्ड फॉर्म्स। इसमें माँ भी यही कह रही है और श्री अरबिंदो भी यही कह रहे हैं कि आप, लोग कहते हैं कि आपने जो कल्पना किया वो रूप आपको दिख गए। मानव की जैसी कल्पना रही वैसे देवताओं को उसने गढ़ लिया। वो कह रहे हैं ठीक बात है, पर मानव कल्पना भी तो कोई चीज अनरियल की नहीं कर सकता। उसकी कल्पना को भी इंस्पायर किया देवताओं ने। उनकी उपस्थिति है देवताओं की, वो इंस्पायर करती है। वही रूप आप कल्पना कर सकते हो नहीं। आपकी कल्पना को मैं छोड़ दूं, आप कल्पना करके देखो, कुछ कल्पना नहीं कर सकते। हमारी कल्पना में भी तो कोई चीज आती है, वो कहीं ना कहीं से आती है। तो इसी रूप में एक जगह जो श्री अरबिंदो और माँ भी डील कर रही हैं कि ऐसे लगता है जैसे मानव चेतना जैसे जैसे ग्रो कर रही है, वैसे वैसे देवताओं का स्वरूप भी ग्रो कर रहा है। वैदिक समय के अंदर सारे गॉड्स जो हैं नेचर से लिए गए हैं, क्योंकि मनुष्य है वो भौतिक है उस समय, फिजिकल माइंडेड है। तो उसके देवता जो है प्रकृति के देवता हैं। इंद्र ले लिया, वायु ले लिया, अग्नि ले लिया आपने, ये सारे देवता इस तरीके से आप लेते हो। पर पुराण के समय आते आते आपके देवता चेंज हो गए। दुर्गा हो गई। अब दुर्गा तो भौतिक जगत के अंदर कहीं नजर नहीं आती। इतने सारे हाथ, इतनी सारी कोई आपके ये वाले रूप तो नजर नहीं आते ना, क्योंकि अब आपके भौतिक की जरूरत नहीं है। अब साइकोलॉजिकल आपके रूप आ गए और उनके साइकोलॉजिकल फंक्शंस हो गए। सरस्वती पहले जो गॉडेस पहले एक नदी के रूप में थी, सरस्वती जो है वैदिक समय में नदी का रूपक है। वही आते आते आपके ज्ञान की देवी हो गई वो। आपके पुराणों में आते आते उसका फंक्शन उसी का। और जो ट्रिनिटी जो पहले थी वेद के समय में, उसका जो फंक्शन था ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें शिव जो है वो शिव के रूप में नहीं, रुद्र के रूप में आप बात करते हो वेद के अंदर। पुराणों के अंदर फिर बाद में आप रुद्र नहीं, आप शिव के रूप में। और शिव का पूरा परिवार, ब्रह्मा जो है ब्रह्मणस्पति, जो सारी चीज का वहां उस तरीके से क्रिएटर है। पुराणों के अंदर आप आते हो, ब्रह्मा से ज्यादा आपके विष्णु है और हैं। तो इनका सारे का फंक्शन है वो एकदम बदल गया। क्यों? और ये साइकोलॉजिकल गॉड्स बन गए। और वेदों के अंदर जिस तरीके का इनका स्वरूप है, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति ग्रो कर गई।
ये यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए इशू बड़ा पेचीदा सा है ये, यहाँ हम इसको डील करने वाले हैं नहीं। As to the gods, man can build forms which they will accept. मनुष्य ऐसे रूपों का निर्माण कर सकता है जिन्हें वे स्वीकार करेंगे, देवता स्वीकार कर लेंगे। But these forms too are inspired into man's mind from the planes to which the God belongs. पर मनुष्य के मन में भी तो इंस्पिरेशन वहीं से उस जगह से आती है, इसलिए वो स्वीकार कर लेंगे। आपके मन में इंस्पिरेशन आई कि मेरे लिए ये मकान बनाओ, क्योंकि वो इंस्पिरेशन मैंने भेजी, वो इंस्ट्रक्शंस मैंने भेजे। इसलिए यदि आप ऑथेंटिकली उस चीज को बना लेते हो तो मेरे को उसमें रहने में क्या दिक्कत है, जब मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको। जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस रूप में आप मेरे को कल्पना करो, तो उन रूपों को अपने ऊपर धारण करने के अंदर देवताओं को दिक्कत भी क्या है। और जैसे जैसे मनुष्य का विकास चल रहा है, ये विकास खाली रूप का नहीं है, डीपर साइकोलॉजी का विकास चल रहा है। इसलिए यदि आप पीछे मुड़ के उन रूपों की ओर देखो तो आप वहां हो ही नहीं, वो आज अप्लाई कैसे करेंगे। आप एक बिल्कुल अलग जगह खड़े हो। तो आज की समस्याएं, और किसी भी क्षण, आज सुबह आप जहां थे वहां से आज अब आप चेंज हो चुके हो, क्योंकि समीकरण अगर पूरे ब्रह्मांड का देखा जाए वो तो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। भौतिक रूप से यदि पृथ्वी की स्थिति जो है पूरे आपके सौर मंडल में, वो चेंज हो गई। हम अभी बैठे थे से लेके अभी तक हम चेंज हो गए। इवन आपका सोलर सिस्टम है उसका सारा चेंज हो गया, उसका सेंटर ऑफ द गैलेक्सी से उसकी जो इस टाइम पोजीशन है वो चेंज हो गई। मतलब भौतिक रूप से हम चेंज हो गए। और आप ये समझ रहे हो कि आपकी जो जीवन यात्रा चल रही है उसमें भी आप मिनट टू मिनट, मतलब क्षण क्षण चेंज हो रहे हो। वो तो भौतिक रूप से ही चेंज हो रहे हो। तो इसलिए आपको फ्रेश रहने की जरूरत है इसके अंदर। ऑल क्रिएशन हैज द टू साइड्स, the formed and the formless. The gods too are formless and yet have forms, but a godhead can take many forms. ये एक दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ। कोई एक देवता अनेक रूप ले सकता है, और जो देवता है वो एक परम देव का ही रूप है। यहाँ गॉड कैपिटल है, गॉड्स नहीं है। टू विच द गॉड बिलोंग्स, यहाँ गॉड देखो आप, और यहाँ गॉड हेड। तो ये गॉड हेड है, ये इसी की पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी अलग अलग रूप ले सकती है। भारत में एक रूप ले सकती है, और ग्रीक कल्चर में वही, जब माँ से पूछा कि भी श्री अरबिंदो को कृष्ण नजर आए, उन्होंने कहा हाँ, यही अगर कोई दूसरी संस्कृति के अंदर होते तो कोई दूसरी चीज नजर आ सकती थी। ये बड़ी गहरी चीजें हैं। और आज तक भी श्री कृष्ण के बारे में किन्हीं भी पुराणों में, किन्हीं भी चीजों में जो कही गई है, या आपके डीपेस्ट समाधि में आज तक भी मनुष्य ने जो कुछ भी साक्षात्कार किया है कृष्ण का व्यक्तित्व, उससे महानतम और बिल्कुल अलग तरीके से और जबरदस्त रूप से महान है। सारी मनुष्य जाति मिलके भी उनकी क्या कल्पना करती है, उससे उनका व्यक्तित्व रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता। ये एक बड़ी विशेष बात है। क्योंकि एक ने कहा कि मैंने देखा श्री कृष्ण घोड़े के ऊपर बैठ के सर पर दौड़े जा रहे थे। ये बात तो कहीं भी कोई भागवत में और में कि श्री कृष्ण घोड़े के ऊपर बैठ के तेजी से भाग के जा रहे हो, ये बात तो कभी सुनी ही नहीं। श्री अरविंद ने कहा भाई अगर उनको रास में जाने की जल्दी हो और घोड़े को काम में ले लिया हो उन्होंने, इसमें किसको दिक्कत हो सकती है। और आज तक भी जो एक्सप्रेशन हुआ है श्री कृष्ण के बारे में, उससे श्री कृष्ण का बीइंग मच 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 वाइडर है। ये एक बहुत विशेष बात है। जगत को आप जिस दृष्टिकोण से देखते हो है उल्टा। अगर आप हायर चीजों के प्रति खुले रहेंगे तो आपको वो इंस्पिरेशन देगी, आपको हायर चीजें आएंगी, तब आप यहाँ गठन करोगे अच्छी चीजों का। भाई यहाँ भागवत भी आई और चीज भी आई, जिसके कारण ये पूरी संस्कृति खड़ी है। आप देखो कि आप देखो तो सही, ये संस्कृति किस आधार पे खड़ी है। वेद क्या है वैसे तो, आप तो कहो खाली एक पुस्तक है। अरे पुस्तक नहीं है ये, पुस्तक कैसे है ये। हम कह रहे सावित्री आ गई,
माँ भी ये कह रही है ना, जब सावित्री आ गई और कोई चीज की आवश्यकता क्या रही है अब यूं तो क्या है सावित्री, कौन समझता है सावित्री को? साथ में माँ ये भी कह रही है खाली मैं ही समझती हूँ। अब कितनी विचित्र बात है। हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते इतना, शब्द के प्रति हम ध्यान नहीं देते। शब्द निर्माण करता है, वर्ड जो है वो उससे क्रिए शब्द से ही क्रिएशन हुई है सारी की सारी। और ये सारी संस्कृति तो शब्द के ऊपर टिकी हुई है। आप जस्ट कल्पना करो कि ये जो हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, तंत्र है, इनको एक बार हटाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे हटाओ। यहाँ कोई चीज नजर ही नहीं आती है अगर शब्द हटा देते हो तो ये हमको समझना पड़ेगा कि समस्या नीचे से ऊपर की ओर नहीं है, ये ऊपर से प्रेरणा है ये सारी की सारी। उससे जुड़ोगे तो कोई निर्माण कर सकते हो, नीचे से क्या कर लोगे। तो इसलिए श्री अरविंद उसमें कह रहे थे कि कमल का जो रहस्य कीचड़ का आप एनालिसिस करोगे, उससे कमल का रहस्य कहां से मिलेगा। यही बात, सारा आपका विज्ञान, हम सारे के सारे उसी का मंथन करने के लग रहे हैं, इसी रहस्य को चूक जा रहे हैं कि जो आदि रूप है, जो हेवनली आर्केटाइप है कमल का, जो स्वर्ग में सदा ही खिलता रहता है, उसको देखो। एक बच्चा कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, वो कितना सही बना पाया या नहीं बना पाया, ये तो ओरिजिनल उस चीज को देखो तब बना, तब बताओगे हाँ मैं समझ गया, नहीं तूने बहुत अच्छा बनाया। ये यहाँ तो अब वो आदमी बना रहा है, एक घर बना रहा है, पूरा एक एक सीनरी बना रहा है, पर आप देखते हो भी बच्चा है, इतना ही बना सकता है। तो जब आप ओरिजिनल रूप देख लेते हो तब पृथ्वी की सारी चीजें आपको लगती है हाँ ठीक है अभी, अब बच्चे ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए गलतियां उनकी जायज है। एक छोटा बच्चा कोई पेंटिंग करेगा, आपको अगर ये सेंस है कि ये बच्चा है और जो बनाने वाली चीज है वो इतनी ज्यादा पेचीदा है, तो आप जजमेंटल नहीं होते, फिर दंड विधान है, ये तो बात ही नहीं रहती। यदि आपके ये दृष्टिकोण आ जाए तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये तो दूसरा भाव की बिल्कुल ठीक है। और अब आप करेक्ट भी करोगे तो उसके अंदर वो वाली बात नहीं आएगी। आप बच्चे को अगर करेक्ट भी करते हो तो उसमें जजमेंटल चीज नहीं आएगी, आप तो उसकी हेल्प करने के दृष्टिकोण से करोगे। तो ये देवताओं की ठीक है ये बात, ये समझ में आ रही है देविका जी, अभी तक की है जो हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है। ये प्रक्रिया रिवर्स है ये। हम जैसे सोच रहे हैं नीचे से ऊपर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं। ऊपर से आपको प्रेरणा और दबाव जो आता है उससे नीचे रूप पैदा होते हैं, अपने आप में यहाँ रूप पैदा नहीं हो सकते। तो आपको अगर नया निर्माण करना है तो मां से जुड़ो, तो आप नया निर्माण कर सकते हो। आपको संकेत मिलेंगे, संदेश मिलेंगे, इनफैक्ट आपके हाथों को गाइड किया जाएगा, माँ पूरा आप पे अधिकार कर लेंगी। यही टेक्नोलॉजी है, ये सच्ची टेक्नोलॉजी है। ये वाली बात समझ में आती नहीं और वो व्यक्ति बाहरी अपीयरेंसेस के अंदर खो जाता है। बच्चे की ये शिक्षा नहीं हो रही, बच्चे को तो आप ये वाली चीज ग्रामर तो सिखा ही नहीं रहे, ये वाली बात तो बता ही नहीं रहे। ये नहीं है, ये कोई सी भी बातें ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीजें। आप अगर सच्ची चेतना में हो, ये कोई सी भी बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ फिर भी ये नहीं है कि मेरी क्लास में ये नहीं कि मैं ग्रामर नहीं बताऊंगा, पर मैं क्या कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा हूं वो बताया नहीं जा सकता। आप अगर माँ से जुड़े हो और वो जिस तरीके से आप में फ्लो कर रही है ये बताया जा ही नहीं सकता। कर रहे हो आप एक चीज हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। हम जो यात्रा करके आए हैं वो बताई जा सकती है क्या? आपके भीतर कोई चीज है जिसके कारण आप टिके हुए हो। अब आप भी सोचते हो यार वो सारे अगर बने रहते कितनी अच्छी बात है। अच्छा है ये माँ का सारा साहित्य पढ़ने मिलता है, ये कितनी रोज रेवलेशंस, रोज नई, कोई कोई चीज रिपीट ही नहीं हो रही, रोज फ्रेशनेस। आप ग्रो किए हो तो आपको भी लगता है यार ये तो ग्रो करने की चीज है। तो ये बाहर से चीज है ही नहीं, ये बाहर कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल से। ये धीरे धीरे अभी तो आपके समझ में आती है, पर बाद में और फिर बाद में जगत की जो चीजें प्रैक्टिकलिटी है फिर
ऊपर से घूम जाती है। पर ये काफी तो मेंटेन कर पाते हो क्या देविका जी? ये जो हम कह रहे हैं, ये रे चीजें डीपर हैं, बारी अपीयरेंसेस नहीं है। हाँ जी। ये हम जो रोज चर्चा करते हैं, इससे कुछ फर्क तो आया होगा ना इससे? हाँ जी, वो जो आप कहते नहीं, वो एक निष्ठ था कि आप या तो आप एक तरफ ही वो, या अडल्ट्री की बात करते हैं कि ये सब हाँ। का ध्यान है, उसकी जगह आप बिलोंग ही भगवान को करते हो। हम्म। मेन प्रिंसिपल तो यही है। तो बाकी तब आप भटकते नहीं हो, अदरवाइज तो 2 मिनट नहीं लगते हैं आप लोगों के। हाँ करो, आप देखो तो आप 2 मिनट में आप कैरिड अवे हो जाओगे। बिल्कुल। तो ये चीज ना हो अंदर तो। हाँ नहीं, अब धीरे धीरे अब क्या है कि ये आपके लिए ऐसा नहीं कि आपको मेहनत लग रही है इस विचार में, कम से कम ये बात कि हाँ बिल्कुल, अब तो हाँ आपके अंदर ये सारी चीजें अब इस स्तर पे आ गई। हाँ, मैनिफेस्टेशन में कितनी क्या आती हैं वो भी धीरे धीरे आएंगी। पर पहले तो माइंड में ही इसके लिए एक एक्सेप्टेंस ही नहीं थी उस तरीके से। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। हाँ, भौतिक तत्व तक आ जाना वो तो फिर बाद में बहुत ही बड़ा काम हो गया। हाँ, बट ये पता चल जाता है कि अब चेतना ड्रिफ्ट हो गई है, हाँ इसको वापस ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल तो सच्ची बात है। बिल्कुल करते ठीक कह रहे हो, एकदम बाहर सही है। तो नहीं करते, तो इतनी तो इम्प्रूवमेंट है। नहीं, पर एक ये बात कि अरे अपीयरेंसेस नहीं, जो अपन अभी जैसे देवताओं की ओर की बात कर रहे हैं, ये आपको रियल लगती होगी। अरे बिल्कुल यही बात है हाँ जी। कि चीजें भीतर वाली हैं, वो यहाँ मैनिफेस्ट थोड़ी ही कर पाती हैं। आपका कल्टीवेशन उतना ही है जितना कि आप डीपर चीजों के प्रति खुले हो और यहाँ उनको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। अरे आपकी कल्पना शक्ति कितनी विशाल है, उनमें से कोई एक चीज आके एक घर बना पाते हो, एक तरीके की पेंटिंग कर पाते हो। पर उससे कल्पना का जगत थोड़ी छोटा हो गया, वो तो भयंकर रूप से बड़ा है। और आपका कितना कल्टीवेशन है, उतनी अच्छी सुंदर कल्पना कर सकते हो यहाँ जगत में। और भौतिकवादी व्यक्ति उल्टे तरीके से देखता है, अरे निर्माण नीचे से नहीं है, निर्माण तो ऊपर से है। ये मेरे ख्याल से ये बात एकदम परफेक्टली क्लियर है। ये यूं तो मानसिक स्तर के ऊपर क्यों, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो हमेशा भगवान याद का रखना है जी। जो भगवान का भिन्न भिन्न स्वरूप हाँ। कल्पना करते हैं, या जो पाया जाता है पुराणों में, वेदों में, बर्थ और वो चेंजिंग स्वरूप है। तो आज जो वही उस उन्हीं भगवान का चित्र बन रहा है, या हम्म संचार के माध्यम से आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो हम्म। क्या ये भी ऊपर से ही आता है? निश्चित। यदि कल्पना ऊपर से आता है, हम्म तो आज जो चित्र बनाए जा रहे हैं इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या संचार के माध्यम से, तो क्या वो भी वही वहीं से आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये तो। ये हायर जगतों से जो इंस्पिरेशन, इसको इंस्पिरेशन नहीं कहते, ये हम्म, तो प्रवेश हो गया। क्योंकि हम हमारे जो सतह बनती है, वो सतह तीन सोर्सेज हैं आपके। एक तो आपके सोर्स है नीचे, सबकॉन्शियस। एक हम्म, आपके सोर्स है सबलिमिनल, ये हमने बात करी थी। आपके इनर हम्म, माइंड, इनर फिजिकल और इनर वाइटल, हम्म, ये आपके भीतर के हैं। सबलिमिनल की हमने बात करी थी लाइफ डिवाइन के अंदर, खूब खूब। हाँ, और एक आपके उच्चतर जगत है, जो नीचे से आते हैं, उसको इंस्पिरेशन नहीं कहते आप। तो अभी तो आपके जितने भी रूप आते हैं, क्योंकि ये कल्टीवेशन इनका है नहीं, ऊपर वालों में इनका कोई प्रवेश है नहीं, भीतर प्रवेश है नहीं, नीचे के प्रति खुले हुए हैं। तो अभी तो ये प्रभावित है इन्हीं चीजों से। भगवान को हम्म। सिगरेट पीता दिखा रहे हैं, अरे तो ये तो हाँ, इनके यही आ यही सकती है, सब और क्या प्रश्न आएगी। आता है, यही सब रूप जो स्क्रीन पर आ जाता है, तो मन में एक बेचैनी होती है हाँ बिल्कुल। कि क्या इस तरह का क्यों पोस्ट भगवान को इतना क्यों उतार दे रहे हैं लोग? हाँ, तो वो उनके वहीं से आ रही इस, है, वो प्रेरणा नहीं बोलते आप उसको, वो तो उसको अच्छा। प्रदूषण बोलते हो आप। कोई कोई हाँ, प्रेरणा थोड़ी है। अरे भाई, आप कमरे में अच्छी खुशबू आप बना के बैठे हो, अब कोई दुर्गंध आ गई तो ये प्रेरणा थोड़ी है, अरे यार बंद करो इसको।
तो ये सोर्सेज, ये तो मनुष्य जाति को, इसीलिए ये जितना भी हिप्नोटिज्म और ये जो साइकेट्रिस्ट हैं और हैं, पहले ये नहीं करते थे, बाद में अब धीरे धीरे इन्होंने स्वीकार किया और इसको इन्होंने शामिल कर लिया चिकित्सा में। और मैं ये माताजी ने कहा इनको इस सेंस नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये डिफेंसलेस वाइटल जगतों में इनको फेंक देते हैं और वाइटल इनको खा जाती है। आपका हिप्नोटिज्म करना, आपको ये सारा काम वेस्ट में बहुत बहुत है, इंडिया में तो फिर भी उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ ये काम अभी भी सो कॉल्ड आपके महात्माओं का प्रोविंस है, आपके आध्यात्मिक लोगों का प्रोविंस है। खैर अभी साइकेट्रिस्ट वगैरह तो आ गए, और जितना हमारा विकास होगा सो कॉल्ड, जो ये सरकार कह रही है विकास करो विकास करो, आपका पूरा सर्वनाश कर देंगे विकास के नाम पे, पूरा बंटा धार देंगे इधर आपको। वो तो अभी हो ही रहा है। हाँ और बिल्कुल एक हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती से ही एक मंत्र है, सर्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते है बेटा ही नो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। तो ये जो सर्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते, तो अभी हमको जो रूप दिखलाई दे रहा है, रूप तो हमारे अनुसार भयानक से भयानक, तो क्या यह वही भगवान का ही प्रगटीकरण है? नहीं जिसे नहीं हमको हम अपना ही कर रहे हैं कि आज जो हमें इतना आतंकवाद सब देख रहे हैं, तो मेरे मन में होता है कि क्या यह महाकाली का के स्वरूप का प्रसार है इस नहीं रोग में, या नहीं रक्तबीज का ही प्रसार है नहीं पुनः नहीं इस ये संसार में? ऐसा नहीं है। हम्म, इसके अंदर कोई चीज आपके हृदय में ऐसी है वो कहती है नहीं गलत है ये, और उसका अपना सत्य है। हाँ, आपके भीतर कोई चीज, हाँ ये कोई रामकृष्ण जी की स्थिति हो जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो स्थिति दूसरी है। पर उसके अंदर भी किसी ने आके उनको ये कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं स्त्री गमन करता हूँ, वो भी ब्रह्म है ये भी। तो रामकृष्ण जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा मैं तेरे ब्रह्म के ऊपर थूकता हूँ। ये सब टोटल बकवास बातें हैं। आपको माँ जो कह रही है आपके हृदय में, ये जो जितनी बातें हैं ना कि मैं सब में ब्रह्म देखता हूं मैं, ये बिल्कुल फंडामेंटली सही बातें हैं, पर आपके लिए है या नहीं है वो माँ बताएगी। अच्छा। वो तो आपके भीतर का जो हृदय में क्या चीज आ रही है वो उससे है उसकी वैलिडिटी। कोई मान लो उस मार्ग के अंदर समता के मार्ग में जा रहा है, वो उस समय उस तरीके से श्री अरबिंदो ने प्रैक्टिस करी समता, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी मूवमेंट तो फर्क नहीं पड़ रहा। पर वो चीज अलग है, आपके अंदर हृदय एक बैठा है। नहीं तो सावित्री तो खत्म ही हो गई, सावित्री का तो मतलब ही नहीं है, उसने कहा नहीं नहीं स्वीकार करती मैं। नहीं तो मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु सामने कह रही है तू भी आ जा चल, कहाँ इससे शरीर से आसक्ति लिए हुए तुम। तो वो आपके भीतर एक हृदय ऐसा है, वो सारी चीजों से ऊपर है, उससे अगर आप सच्चे हो तो आप जान जाओगे ये चीज मैं स्वीकार नहीं करता, नहीं करूंगा मैं ये, बस। और उसका बहुत बड़ा सत्य है, जगत के अंदर जो भी क्रांतियां आई हैं वो इसी तरीके से आई है। श्री अरबिंदो अगर ये कह देते नहीं, जो उनके ड्रीम्स थे श्री अरबिंदो के, नहीं वो कह देते जैसा हो वैसे प्रकृति अपने आप करेगी, कि ना ये नहीं होने देंगे। यानी चुनाव हमारे हाथ में है कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे निर्माता हो आप, चुनाव क्यों, भगवान स्वयं हो। हैं। अरे आपको एक एक यूं ही जमीन मिली है और आप उसके अंदर बैठे हो कि ठीक है भगवान भुवन भास्कर भी है, मैं यूं ही बैठा हूं, उसकी बजाय मैं करने नहीं बगीचा बनाएंगे इसके अंदर, आप बगीचा बना लेते हो ना चयन करते हो तो। आप आज ठीक जो है है भाई। एक जो सामान्य आपकी दिनचर्या, उसके अलावा आज संकल्प करो कि मेरे को आज 4 फोन करने हैं किसी को, पुस्तकों के लिए 4 फोन करने। जैसी आज आप करोगे तो कल के दिन का आपको अनुभव है, आज के दिन का आप अनुभव कर लोगे, इन दोनों में आप पाओगे ये तो फर्क पड़ गया। व्यक्ति संकल्प करके जो चीज करता है, मैंने तो ये पाया, और मैं बिल्कुल राइटफुली आपको कह सकता हूं कि जीवन कैसे चेंज होता है। मैं उसी परिवार में मैं देखता हूं कि वहां अगर मेरे भाई बहन हैं उसी परिवार से आए, मैं भी वैसे ही कर रहा होता। वो जिस जीवन को जी रहे हैं उनको कोई सेंस नहीं, भाई उसी माँ के पेट से पैदा हुए ये तो भाई बहन प्रत्यक्ष क्या रूप कर से रहे हैं, देख भी रहे हैं। उस चीज का उनको कोई सेंस नहीं है।
आप ये सोचिए कि ये कितना विचित्र संसार है, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए आप जिस जगत में रहते हो, आपके चयन का जगत है ये, सामने जगत है ही नहीं, ये आपका है। संकल्प करो और निर्माण करो। अभी तो अनंत संभावना, आप संकल्प कर लोगे तो आप कर पाओगे। आप करके देख लो। आप कोई व्रत लेते हो या कोई आप, एक तो अपने आप को ढीला छोड़ दो, और एक ये संकल्प करो नहीं ये करेंगे, विल पावर लगाओ। जैसी विल पावर लगाते हो देखो उसमें इंटेंसिटी आ जाती है। एक ये ढीले ढीले पड़े हैं यूं ही ना, संकल्प लगाओ, फिर देखो आप क्या कह रहे हैं, ये भी करेंगे ये भी करेंगे। मैंने तो ये पाया, एक एक्टिविटी और पकड़ लो उसी दिनचर्या के अंदर, आपका वो संसिद्ध भी हो जाएगा। नहीं तो सामान्य दिनचर्या आपने तो देखी है हमारी, वो सामान्य दिनचर्या भी इतनी है कि आदमी कहते यार एक्स्ट्रा काम कहाँ से पकड़ रहे हो, एक एक्स्ट्रा पकड़ लो, वो भी उसमें अकोमोडेट हो जाएगा। आप इगोइस्टिक मोटिव से नहीं शुरू करते कोई चीज। माँ आपको प्रेरणा देती है तो माँ आपको शक्ति भी दे देगी। संकल्प करो और करते रहो करते रहो करते रहो। इसी आधार पे हम तो इतने वर्षों से यहाँ चल रहे हैं, और ये बिल्कुल मेरे लिए तो एक वैलिड ट्रुथ है, ये सत्य है। कुछ कुछ आपने इसकी झलकी देखी भी है देविका जी, कि इससे क्या होता है वो तो आपने देखा ही है। हाँ जी। तो आप संकल्प करके देख लो, आप ढीला छोड़ दो क्या तो, पर वो एक दूसरी स्थिति है। आपने कहा कि भगवान के भरोसे मैंने यो छोड़ दिया, वो तामसिकता में जाना नहीं, पर खतरनाक स्थिति है। हम नहीं है उस जगह अभी, हम कोई योग की उस स्थिति में थोड़ी है। अभी तो संकल्प करो, जितना इसको कस दोगे उतना आप इसमें पाओगे कि आपका बीइंग वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। माँ का एक टाइटल है एफर्ट गिव्स जॉय, इसमें भी है। इसमें साहित्य संचयन में और उसके अंदर अवेकनर में तो मैंने पढ़ाया ही था, एफर्ट गिव्स जॉय। तामसिक व्यक्ति को जॉय आ ही नहीं सकता। अगर आप तमस में हो, आप जॉय में नहीं हो, आपको ये देवियां दूर सेंस ही नहीं आएगा कि ये देवियां क्या हैं। आप उठ के एक्सरसाइज करो, वो ये नहीं कि आपके कोई हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ हो जाए अच्छी या नहीं हो, मेरा तो सरोकार उससे कम है। आपको इन चीजों में प्रवेश करते हो और आपके लिए ये देवियां रियल हैं, नहीं तो ये काम कर ही कैसे सकते हो। आपके पास बारी सारे रिसोर्स हो सकते हैं, शरीरम स्वरूपम, ये सारी चीजें हो सकती है। आप श्लोक बोल रहे हो और ऐसा कि रिपीट ही नहीं कर रहे कई दिन तक, लगातार फ्रेश, क्या आया पर उससे? इन देवियों की क्रिया तो पता चली नहीं। ये तो इनकी कृपा से ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। निर्माण यहाँ इन्हीं की कृपा से होता है सारा का सारा। आप कौन से जगत से खुले हो उतने का निर्माण कर सकते हो आप। आपको कितने जगतों के अंदर प्रवेश है? अरे भाई, आपकी जानकारी कोई कोई कर्मचारी है उससे है, या फिर बाद में राजा स्वयं से। अब राजा स्वयं से आपकी जानकारी है वो तो काम ही दूसरा हो गया। नहीं तो व्यक्ति छोटी छोटी चीज के लिए चक्कर काटता रहता है सरकारी ऑफिस के, अगर इंडिया में हो तो आप वही, अगर आप वहां हो तो आप बाईपास कर जाते हो सारी चीज को। तो वैसे ही यदि आपका सीधा संपर्क माँ से है, तो ये जगत की सारी क्रिया विधि जो आपके हेल्प के लिए है, आपको रोक नहीं सकती है। पर ये बात आपके भौतिक चेतना स्वीकार करती नहीं। हम रोज पढ़ लो चाहे, यही प्रॉब्लम है। मगर हूं आप साधना अपना लो, यहाँ आ जाओ चाहे, तो नहीं स्वीकार करते। आपको लगता है यार बिना पैसे कैसे काम होएगा, इस चीज के बिना कैसे काम होगा, लोगों के बिना पार्टी कैसे चलेगी, या कैसे पार्टी होगी, कैसे देश के अंदर आदमी एक नहीं है जो मार्क्सवादी अरविंद की बात समझता हो। आप कह रहे हो मार्क्सवादी अरविंद का यहाँ साम्राज्य आ जाए, क्यों? अभी भी हमारे दिमाग के अंदर ये फितूर भरा पड़ा है कि लोगों के कारण ये चीज होगी। श्री अरविंद कह रहे डिवाइन गवर्नमेंट आएगी, तो इस तरीके से चुनाव करके इस प्रक्रिया से तो नहीं आ सकती। तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा और होगा, अभी तो ये प्रश्न ही नहीं। हमारे तो प्रश्न ही बड़े छोटे हैं, हमारे सरोकार बहुत ज्यादा छोटे हैं।
हम ये बोलते तो हैं इस समय, पर तन्मयता तो हमारी शरीर के प्रति अटकी रहती है, प्राणी का आपके संबंध है उनसे अटकी रहती है। तो अच्छे जो मुद्दे हैं उनके बारे में तो विचार ही नहीं उठते। देखो आप, सब समय विचार जो है उसकी परिधि क्या होती है, बहुत ही छोटी परिधि होती है। पेट कैसे भरें, संबंध हैं उनको कैसे हम करें, ये सारी बातें मतलब जिसमें आदमी में थोड़ा वो सेल्फ रेस्पेक्ट हो, वो भी कहेगा यार ये कोई बात है क्या, पर यही करते हैं हम जीवन भर। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोई बात अनिल जी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यही से, यही है सत्य, तो यही। पर फिर भी जो है सूक्ष्म गति तो हो रही है बिल्कुल। तो निरंतर जो है आपका प्रतिक्षण हो रहा है और ग्रैंडता बन रही है, एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, जब भी तो इस मेरा सारा। मेरे ख्याल से अब ये फर्क तो आया होगा जो ये कह रहे हैं, अरे भाई सारी चीज भीतर से इंस्पायर्ड है, भौतिक प्रतीतियों को क्या एनालाइज कर रहे हो। बिल्कुल। ये धीरे धीरे सूक्ष्म। धीरे धीरे अगर आपको ये अगर आ जाएगा तो आप दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे माँ देखती थी इस साल ये फूल ज्यादा हैं तो वो, अरे क्या ये हाँ, इंडिकेटिव है। बिल्कुल। तो वैदिक ऋषियों को सारी चीजें दिखती वैसी थी, वो भौतिक रूप से नहीं लेते थे। पर अब हमारी तो देखो हम तो निरक्षर हो गए, वो भाषा ही हम भूल गए। इसलिए वो जो काम कर पाते थे, अभी तो अगर आपको कह दो चलो तैयारी करवाते हैं तो ही आप कह दोगे नहीं। कैसी हाँ, कैसी चीजें, महान उपलब्धियां उन्होंने करके छोड़ दी, वो तो काल ने कितनी तो निगल गया। जो कुछ थोड़ी बहुत बची हैं वो भी इतनी भयंकर हैं, इतनी जबरदस्त हैं, हमारी सोच समझ से परे हैं। वो तो वो करके नाम भी लिख के नहीं गए कि हम ये करके जा रहे हैं, और वो हाँ, उपलब्ध है, बिल्कुल। आप ये देखो। अद्भुत है, बिल्कुल। तो वो मानवीय क्षमता पहले तो वो क्या थे, उन्होंने कैसे किस क्षमता से, और आप ये कह रहे हो अब हम डेवलप्ड हैं। मतलब किस हाँ, चीज में डेवलप्ड हो तुम बताओ, तो एक तो चीज बताओ कि जिसमें डेवलप्ड हो। मुझे तो उल्टा ही दिखता है। प्रोग्रेस कहते हैं तो प्रोग्रेस कहाँ दिख रही है सर? मतलब अपन हमेशा इतिहास को गौरवान्वित कहते हैं और आज अपन कह रहे हैं कि प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा इसमें विरोधाभास लगता है बहुत ज्यादा। ये एक सोचने की बात है कि यार ये क्या, कहाँ क्षमता तो बहुत ज्यादा छोटी हो गई हमारी क्षमता, अगर देखो। और जो चीजें हमारी संस्कृति ने रूप निर्माण करके छोड़ रखे हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऑनलाइन, वो ये कह रही है ये मनुष्यों के निर्माण नहीं है, वो ये तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स आए थे, उन्होंने ये सारी चीजों का निर्माण किया। बिल्कुल। क्योंकि वो ये मानने ही तैयार नहीं है कि मनुष्य जैसा निकम्मा और जितना छोटा ये है, वो कोई अच्छी चीज सोच भी सकता है, करना तो बहुत दूर की बात है। अरे हम अपने आप को देख लो, दूर जाने की क्या जरूरत है। एक अच्छी चीज व्यवस्थित नहीं कर सकते, जीवन में कोई अनुशासन नहीं कर सकते, हम क्या हैं। अगर आप अपने आप के प्रति जो भाव रख रखा है उसको थोड़ा सा हटा के, थोड़ा सा तटस्थ रूप से देखो आके, यार क्या है हम। और आपको मजबूर कर दिया जाए अनिल जी अपने आप को ही देखने के लिए, आप कहते यार हटाओ इसको, क्यों परेशान कर रहे हो। ये तो सही एक बात। सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी या ये दे रखा है तो हम जिंदा रह पाते हैं, नहीं तो अगर वास्तव में देख लेते, जिंदा नहीं रह सकते थे। और अगर मजबूर कर दें कि आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, आप कहते भैया क्यों दंड दे रहे हो मेरे को, हमारी स्थिति इतनी खराब है। ये और पढ़ लेते महाकाली। Why is the mother working in the form of Maheshwari in me? Why is she working so slowly? अब क्यों का तो क्या है देखो, क्यों माँ जो है मेरे अंदर महेश्वरी के रूप में कार्य कर रही हैं, और वो इतना धीरे कार्य क्यों कर रही हैं। If she worked in the form of महाकाली, everything troubling me would flee from fear। अगर वो मेरे अंदर महाकाली के रूप में काम करती तो मेरे अंदर की सारी चीजें जो है ना, वो भयभीत होके भाग जाती, मेरे लोअर मूवमेंट से या जो भी। एंड द मदर्स ल्यूमिनस सन वुड राइज इन मी। और माँ का जो ल्यूमिनस सन है, सूर्य है, वो मेरे अंदर उदय हो जाता। महाकाली कैन वर्क ओनली when there is a calm inner being and a resolute will facing without disturbance all the difficulties। महाकाली आपके अंदर, कल मैं आपको कह रहा था महाकाली को बुला लो, पर वो कब काम करेंगी उसका एक तरीका है। रोज नहीं आप इस तरह
बुला सकते हो, पर वो जब तक भीतर से पुकार नहीं आती। हमने ये पाया है कि आपकी क्षमता से वो काम आप नहीं कर सकते थे। ये उदाहरण तो मैं नहीं दे सकता कि इसके एक्चुअल उदाहरण ये आपकी साइकोलॉजी में किस तरीके से काम करेंगी, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक ऐसी शक्ति है, हालांकि प्री मैच्योरली बुलाना नहीं चाहिए, वो आके छिन्न भिन्न कर देंगी। भाई आपके मकान का मान लो आपको कोई एक बाथरूम तोड़ना है, उसको नया बनाना है, अब उसके लिए आप कह दो कि एक मिसाइल दाग दो इस मकान के ऊपर, अब तो आप कहते यार ये गड़बड़ हो गया, ये तो पूरे मकान को ध्वस्त कर देगा। मकान नहीं, आसपास के एरिया को नष्ट कर देगा, आप जितनी बड़ी शक्ति बुला रहे हो। तो ये इस तरीके से कार्य नहीं करती ये चीजें। भैया आपको कोई चीज तोड़नी है, कोई आपके घर के ऊपर कोई एक चीज को डिमोलिश करना है, पर वो एक पार्ट है, तो उसके लिए आप कोई इतनी बड़ी शक्ति की, यहाँ चलो डायनामाइट लगा दो और इससे तोड़ लो, अरे कहते इससे नहीं तोड़ते भैया, इसके लिए चीज दूसरी चाहिए। तो वैसे ही ये शक्ति तो जबरदस्त प्रचंड शक्ति है। And the mother's luminous sun would rise in me. महाकाली can work only when there is a calm inner being. यदि आप में शांत आंतरिक सत्ता हो तो महाकाली कार्य करेंगी। And a resolute will facing without disturbance all the difficulties. और आपके अंदर resolute will हो, जो सारी समस्याएं उसको फेस करने के लिए अगर तैयार हो। ये सारे समय नहीं आता। अब इसका भी एक विचित्र मैकेनिज्म है, ये सब समय ये वाला भाव, ये वाली चीज आती नहीं है सारे समय कि आप चाहो और बुला लो, ये नहीं होता ये। पर यदि आपके ऐसे संकट के काल हैं, संकट इन दी सेंस आध्यात्मिक में क्राइसिस की बात कर रहा हूं, और उसमें एक डिसाइसिव स्टेप की बात, अगर आपको जैसे कोई स्टेप लेना है, सपोज अभी आप तैयार हो और आपको मेरे को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है, ड्रास्टिक कोई स्टेप आपको लेना है पीछे वाले तोड़ने के लिए, आप कितना भी मानसिकता कर लो और कर लो, आपको जो एक एक्स्ट्रा जो उसमें थ्रो प्रदान करेगा, इनमें से कोई सा आए बिना आपको थ्रो नहीं मिलेगा। खाली आप सोचो कि मैं बैठ के और चिंतन कर लूं, मानसिक रूप से और विकास हो जाए, वो आपको धकेलेगा नहीं इसमें। आप उस जगह को तोड़ नहीं पाओगे, उस फ्रेमवर्क को तोड़ नहीं पाओगे, उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो बूस्ट की जरूरत है वो इनके बिना नहीं हो सकता। और आप ये पाओगे कि अभी तो आपको लग रहा है सहज कि यार ये यही तो है, मतलब इतना और अलग से क्या हो जाएगा, मान लो अपन माँ को दे देते हैं या डिसाइसिवली कर लेते हैं। पर जिन लोगों ने ये शिफ्ट लिया है वो जानते हैं कि ये वो वाली चीज नहीं है। इसीलिए हम सोचते रहते हैं ये व्यक्ति कहता तो है, कर पाएगा क्या, क्या ये शिफ्ट ले पाएगा। ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए when there is not that, then it is only possible for Maheshwari to work in order to bring her calm and wideness into the being. जब ऐसा नहीं हो तभी जो है महेश्वरी के लिए संभव होता है कि अपना काम और वाइडनेस सत्ता में लेके आए। इन चीजों की चर्चा नहीं की जा सकती, ये बहुत ज्यादा भारी चीजें हैं। हाँ रियल हैं, इतनी रियल हैं कि आपके पूरे जीवन का कोर्स चेंज कर देती हैं, पर ये बताई नहीं जा सकती क्योंकि ये तो माइंड के आपके विचार बन जाएंगे, मेंटल फॉर्मेशंस हो जाएंगे, इसलिए इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। और सबके साथ एक जैसे होता भी नहीं, क्योंकि ये जिसको बोलते हैं ना दुर्गा अगर आ गई, सर्व दुर्गाणी, सारे दुर्ग आपके जो है उनको छिन्न भिन्न करके मुक्त कर देती है। मतलब आपने जितने भी गढ़ रखे हैं, जो रचनाएं बना रखी है, उनको छिन्न भिन्न कर देगी, पर वो रचनाएं आपकी हैं। आपने आपके कौन से दुर्ग हैं सर्व दुर्गाणी, तो उनको ये जो आके कैसे मिटाएगी या आपको कैसे उनसे मुक्त करेगी, है रियल, पर इससे ज्यादा तो और नहीं कही जा सकती। ये आपको शिफ्ट करवा देगी। आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जो एक एक रट से बाहर नहीं जाती, एक स्थिति से जो बाहर नहीं निकलती, उससे निकालने के अंदर ये ही चीजें हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। आप सोच के तो नहीं बुला सकते इनको, इसके क्रिया करने का तरीका बिल्कुल अलग है।
ये आ जाए, नहीं आ जाए, नहीं आ जाए। सोच के बुलाओगे तो उसकी इफेक्टिविटी भी बस उतनी भर हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं। तो इसकी जो गंभीर चीज है और है, कभी यदि मौका हो, आप नजदीक हो और उतनी चर्चा की जा सकती हो, तो डेफिनेटली की जा सकती है। ये नहीं हो तो जिसके जीवन में ये हुआ है और वो काफी ऑब्जर्वेंट यदि व्यक्ति है, तो वो ये देखता रहता है व्यक्ति को कि यार इसके जीवन में हुआ नहीं ये, वो डीपर दृष्टिकोण से वो देखता है चीजों को, क्योंकि उसके साथ वो घटित हुई हैं। तो वो देखता भी इसके जीवन में भी क्या ऐसा हुआ। आपके अगर जीवन में घटित होगा तो आपके लिए वो रियल चीज होगी। अब जिसके नहीं हुआ उसको कैसे बताओ आप ये बात, वो होगी नहीं। इसलिए वो शब्द जो है जितना आप माइंड से उसका बना सकते हो उतना बना सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं बना पाओगे। भाई मेंटल जो आप उसके लिए एटीट्यूड ले पाओगे वो ले पाओगे। तो ये एक साधक की बातें हैं। अब ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो कोई मायने रखती नहीं। वो तो हाँ कि काली को बुला लो या दुर्गा को बुला लो, वो देखो ऐसा करती है, वो ठीक है ये बातें, इससे ज्यादा तो हम नहीं कह सकते। पर आपके जीवन में उसने ऑथेंटिकली क्या किया, उसकी क्रिया क्या रही, कैसे वो सर्व दुर्गाणी को तोड़ के आपको मुक्त करके लेके जाती है, वो एक अलग बात है, वो एक्चुअल चीज है। ठीक है, आगे तो अगली बार करते हैं इसको। देविका जी, कोई बात इसमें? ठीक है। कितनी सारी चीजें निकल के आ रही है और फिर भी ये पढ़ के भी अभी तो एज इफ ढकी हुई है सारी की सारी चीज। ये आंतरिक तैयारी की मांग करती है इन चीजों का रहस्य उजागर करने के लिए, नहीं तो पढ़ के तो एक बार गुजर जाते हैं, पर इसमें जो चीजें दर्ज हैं वो देखो आप। वैसी सीक्रेट ऑफ वेद है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सावित्री है, ये सारी चीजें सामने आने की हैं। तो यहाँ अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। 2 मिनट दीजिए आप।